Okay, the next MCQ is on second day of life, breastfeeding baby presented with jaundice. Bilirubin is 8.5 and total bilirubin is 9. What is the diagnosis? So it is physiological jaundice in second day of life. ठीक है, pathological jaundice होगा first day of life, physiological second day of life and breast milk jaundice 5 to 7 days. Clear? Example of non-keratinized elastic stratified squamous is present in vagina. A female presented with fever and dysuria, gram-negative, motile-shaped, rod-shaped bacteria, fermenting pink colony, McConkey is agar. There are indole positive and oxidase positive. What is the most cause of the UTI? तो it is E. coli. ठीक है, ये जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ये E. coli के, तो इसको आप फाइल पॉइंट में भी लिख लो. क्लियर? द नेक्स्ट इज़, अच्छा देखो लैक्टोज फर्मेंटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं. फास्ट में अगर आप देखते हो तो ई कोलाई, क्लैप्सिला और एंटेरोबैक्टर है, जबकि स्लो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं सिट्रोबैक्टर एंड सेरेशिया. ठीक है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर सल्मोनेला, शिगेला है, सूडोमोनास है, यर्सीनिया है. ठीक है, तो दीज आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. Okay, the next is after finger cut in a boy, which of the following is initial mediator in inflammation? तो it is histamine. ठीक है, पेन मीडिएटर इज़ ब्रेडिकाइनिन. ठीक है, जबकि फीवर मीडिएटर इज़ इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. ठीक है, वेजोडाइलेशन किसकी वजह से होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 और E2 की वजह से होती है. लेट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोस्टाग्लैंडिन से, जबकि इनिशियल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? हिस्टामीन है. क्लियर? A patient presented with fever, it is due to, the fever is due to interleukin 1. ठीक है, सूडोमोनास का fever, it is due to tumor necrosis factor. ठीक है, women with peripheral tingling sensation and numbness and diplopia, visual disturbance diagnosed as having demyelinating disease, which of the following would be affected in such? तो it is oligodendrocytes. ठीक है, demyelination oligodendrocytes करते हैं. Okay, the next is 60 years old man presented in OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency. On digital rectal examination, there is stony hard mass. Felt that prostatic lymphatic drainage is, तो it is internal iliac lymph nodes. ठीक है, prostatic drainage पूछा है, तो प्रोस्टैटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में जाता है. अपॉन ऑटोप्सी आ पेशेंट वॉज हैविंग एन एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस विच शोज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज़ लाइंस ऑफ जहन. ठीक है, आप देखिएगा लाइंस ऑफ जहन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो कैरोलिन थ्रोम्बस है, प्री मॉर्टम थ्रोम्बस है और एर्टीरियल थ्रोम्बस. तो इन तीनों थ्रोम्बाई के अंदर हमारे पास लाइंस ऑफ जहन जो है वो दिखते हैं. जबकि चिकन फैट अपीयरेंस कब होता है? पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बस में. ठीक है, अब इन्होंने हमसे एंटी मॉर्टम थ्रोम्बस का पूछा था जो कि है लाइंस ऑफ जैन. द नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग सर्वाइकल एक्ट्रोपियोन. ट्रू इज़ तो नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. ठीक है, सर्वाइकल एक्ट्रोपियोन प्रेगनेंसी में नॉर्मली होता है. ठीक है, टैमोक्सिफिन थेरेपी फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा हैज़ स्टेरोजेनिक एंड एंटी स्टेरोजेनिक इफेक्ट. इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. ठीक है, टोमैक्सोफिन का एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो क्या है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. A day following hysterectomy, a patient complains of severe pain at the right upper lumbar region of the back. Which of the following structure most likely to be damaged during hysterectomy? तो hysterectomy में यूरेटर्स को लाइगेट करने का या सीवियर करने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है. Rich source of vitamin K is green leafy vegetables. Most common cause of subfertility is anovulation. Group of neurons that generate basal rhythm for breathing includes dorsal. ठीक है, अब medullary respiratory center is located, तो वो हमारे पास located in the reticular formation. जबकि dorsal respiratory group कहाँ मौजूद है? It is primarily responsible for inspiration and this generates the basic rhythm for breathing. ठीक है, input of the dorsal respiratory group comes from the vagus and the glossopharyngeal nerves. वेगस नर्व रिलेज इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वेगस नर्व सिर्फ क्या करता है? इट रिलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स एंड मैकेनिकल कीमोरिसेप्टर्स इन द लंग्स. ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर्स इन द लंग. जबकि ग्लोसोफेरिंजियल क्या करता है? इट रिलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ओनली. ठीक है, आउटपुट फ्रॉम द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ट्रेवल्स विया द फ्रेनिक नर्व टू द डायाफ्राम इवेंचुअली. क्लियर?
द नेक्स्ट इज़ वेंट्रल ग्रुप ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इसमें क्या होता है, इट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपीरेशन, ठीक है, एंड नॉट द एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग वेर एक्सपिरेशन इज़ पैसिव, ठीक है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है, उसमें वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का कोई फंक्शन नहीं है। It is activated during exercise where expiration becomes an active process, ठीक है। The next is apneustic center, तो it is located in the lower pons, it stimulates inspiration, ठीक है, it stimulates inspiration, produces deep and prolonged inspiratory gasp, that is एपनियोसिस, ठीक है। अगला है न्यूमोटैक्टिक सेंटर, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पॉन्स एंड इनहिबिट्स इंस्पिरेशन, देयरफॉर रेगुलेट्स इंस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी रेट। न्यूमोटैक्टिक सेंटर क्या करता है, रेट्स को रेगुलेट करता है, क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो हम सबको याद होना चाहिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फंडस ऑफ द स्टमक इज़ बाय विच लिम्फ नोड्स, तो इट इज़ सिलिएक लिम्फ नोड्स। Most likely cause of pernicious anemia is it is autoimmune atopic gastritis. Most common cause of premature ovarian failure is it is autoimmune, ठीक है। अगला है पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेरेक्टमी, डैमेज अकर टू द यूरेटर एट विच लोकेशन, तो इट इज़ बिहाइंड द ब्रॉड लेगामेंट्स, ठीक है। हिस्टेरेक्टमी के दौरान बिहाइंड द ब्रॉड लेगामेंट्स यूरेटर को सिवियर करने का या डैमेज करने का ख़तरा होता है। अ प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर हैविंग अनचेंज ग्रोथ हार्मोन रिलीज। अच्छा, व्हाट इंक्रीजेस इंसुलिन सीक्रेशन, तो इट इज़ सीक्रेटिन, ठीक है। Women developed viral hepatitis in pregnancy, came across in the internet that this virus is dangerous, तो इट इज़ प्रेगनेंसी में लीथल कौन सा है, वाइटामिन कह रही हूँ, हेपेटाइटिस ई है। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इन कोकेशियन पीपल परसेंटेज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इज़ 47%, ठीक है। ओके, अगला है विच पैरामीटर चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इट इज़ डिक्रीज FEV1 ओवर FVC रेशियो। Contents of superficial perineal pouch, तो it is perineal body. A physician auscultates posterior inferior border of the lung at which level, तो it is T10 तक हम posterior inferior जाके palpate या auscultate करते हैं, ठीक है, साउंड सुनते हैं। Most common carcinoma in man worldwide is prostatic carcinoma. A patient presented with paroxysmal fever, chills, time and duration for the symptoms appearing was 36 to 48 hours and ring crescent shaped organism, तो जो crescent shaped अगर mentioned हो तो it is falciparum bacteria, ठीक है। Most common carcinoma in both the genders in Pakistan is lung carcinoma, clear। 23 years primary gravida presented to obstetric department in second stage of labor. On examination, the sacral promontory was not reachable and pelvic arch was narrow. ये जो pelvic arch थी that was narrow and prominent ischial spines, ठीक है। तो this is, तो ये हमारे पास क्या एंड्रॉयड pelvis है। अब देखो, अगर तो हमारे फिंगर्स रीचेबल हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ, तो इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड pelvis, क्लियर। फिंगर्स अगर सैक्रल प्रोमोन्ट्री को टच करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जबकि अगर सैक्रल को टच नहीं करते तो इट इज़ एंड्रॉयड पेल्विस, ठीक है। एंड्रॉयड पेल्विस क्या है, टिपिकल मेल पेल्विस है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो है उसमें ये होता है कि फिर इसकी डिग्रीज़ होती हैं, कुछ पार्शियल है और कुछ जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगी उसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को कभी भी प्रेफर नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट सी सेक्शन करेंगे। अपर लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्लूड्स, तो अपर आउटर कहाँ पे जा रहा होता है, पेक्टोरल में जा रहा होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बार बार जो है हमारे पास ब्रेस्ट की ड्रेनेज के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। अब है कि सीक्वेंस ऑफ मेजर लिम्फ नोड्स पैरेलल अलोंग विच वेसल, तो जो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं ये पैरेलल हैं एंटीरियर एक्सिलरी टू द पेक्टोरल। सीक्वेंस ऑफ लिम्फ नोड्स पैरेलल अलोंग विच वेसल, तो इट इज़ इंटरनल थोरेसिक वेसल। निपल की ड्रेनेज जो है वो पेक्टोरल में होती है, लेटरल या फिर अपर आउटर की होती है एंटीरियर एक्सिलरी में यानी कि पेक्टोरल में। लोअर लेटरल या फिर इंफीरियर की हो रही होती है एंटीरियर एक्सिलरी में, सब डायफ्रामेटिक में और इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। मीडियल क्वाड्रेंट की हो रही होती है इंटरनल मेमोरी में या फिर इंटरनल थोरेसिक में। इनर
लोअर इनर मीडियल भी होती है, इंफीरियर फ्रेनिक या सब डायफ्रामेटिक में। टेल ऑफ द ब्रेस्ट पोस्टीरियर या फिर स्कैपुलर जाके होती है। अब पाथ ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो, तो वो हमारे पास है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट कितने हैं? मीडियल एंड लेटरल 2 हैं। क्लियर? सही है। तो आगे कर लेते हैं हम